Hello students, welcome to Kadam Study Center. This is lecture number 3 of chapter number 3 control structure. In this lecture we have covered if statement, if else statement, switch case statement and while loop. Okay, so let's start the lecture. If statement, it is two-way decision statement depending on whether the value of expression is true or false. So what is if statement? If statement is a two-way decision statement डिपेंडिंग ऑन वेदर द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स. अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू और फॉल्स है तो इफ स्टेटमेंट का यूज करना है. मतलब ये टू वे डिसीजन स्टेटमेंट है और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू है या फिर फॉल्स है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. दिस इज सिंटैक्स फॉर if statement. Okay, if condition then true block is executed and then statement. Okay. If else statement, this statement allows selecting one of the two available option depending upon the output of the test expression. If else statement क्या करता है? The statement allows selecting one of the two available option. uh, we have two available option, okay, in the program. Then if else statement allows selecting one of the option, okay, of two available option depending upon the output of टेस्ट एक्सप्रेशन. मतलब जो आउटपुट है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है. देन स्विच केस स्टेटमेंट. सी हैज मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट नोन एज switch case statement. In C programming language there is multi way decision statement which is known as switch case statement. A case expression can be repeatedly used in switch case that it allows several action and choose one action to be executed at runtime. Okay, a case expression can be repeatedly in used in switch case. switch case में expression repeat होता है that it allows several action. वो several action allow करता है and choose one of the action to be executed at runtime. मतलब जब प्रोग्राम रन करते तो several action में से एक ही एक्शन चूज करता है रन टाइम के वक्त. ओके, द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इज used to quit switch statement case is match. Okay, so that only one case get executed. Then if break statement is not given then all the statement following match case get executed. Thus break statement is compulsory for proper execution of switch case statement. अगर switch case statement execute करना हो तो break statement compulsory होता है. Okay, then this is syntax for switch case statement. Okay, this is syntax for switch case statement. Then next one is while loop. This is syntax for while loop. while loop में क्या होता है? पहले initialization होता है, then while loop, then condition, then here your program, then increment or decrement, then close the program. This is syntax for while loop. Okay, then while loop is entry control statement. while loop क्या है? entry control statement है. in while loop condition is evaluated. if the condition is true the body of loop is executed. अगर condition true होती है तो body of loop execute होता है. this process continues until condition becomes false and control is transfer out of loop. मतलब loop क्या है? एक तरह से ऐसा suppose this is cycle. अगर condition true होती है तो this cycle repeatedly infinite times. वेदर द कंडीशन इज फॉल्स. अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुई तो साइकिल यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी. वैसे ही अगर द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स. जब तक हमारा प्रोग्राम फॉल्स नहीं होता, मतलब आंसर जब तक फॉल्स नहीं आता तब तक कंडीशन कंटिन्यूअसली रन होती रहेगी एंड कंट्रोल ट्रांसफर आउट ऑफ द लूप. इन व्हाइल लूप इनिशियलाइजेशन टेस्ट कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन आर नेसेसरी. ये जो सारे ऑपरेशन है ये व्हाइल लूप में मस्ट होते. ओके, देन ओके, हमने ये टॉपिक तो कवर कर लिए. इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट एंड व्हाइल लूप, ये छोटे छोटे टॉपिक है. देन अभी हम उसके प्रोग्राम देखते हैं. मतलब कुछ प्रोग्राम आज हम प्रैक्टिस करके, मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी टाइप करके रखे, मैं आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ और फिर उसको टर्मिनल में जाके रन करके दिखाता हूँ. ओके, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, दीज आर 3 प्रोग्राम इन फ्रंट ऑफ यू. मतलब क्वेश्चन से ये प्रोग्राम मैं आपको अभी दिखाता हूँ. Write a C program to accept name of student and marks of 3 subject. Find out percentage and grade of student. So यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? एक्सेप्ट करना है नेम ऑफ स्टूडेंट, देन मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, देन
जो मार्क्स है उसके परसेंटेज एंड ग्रेड। ओके, तो कंडीशन देखो हमने क्या लिए, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 75 then grade is distinction. If percentage is less than 75 and percentage is greater than equal to 60, then first class. Then as like higher second class, then second class, then pass class and fail. These are all above the condition. Okay, ये सारे condition हमें प्रोग्राम में यूज करने। ओके, चलो तो फिर प्रोग्राम की तरफ बढ़ते। ओके, सो इन विजुअल स्टूडियो कोड मैं आपको आई विल जूम इट। ओके, आपको अभी क्लियरली सी हो रहा है क्या? मैं टर्मिनल को थोड़ा छोटा करता हूँ। ओके, आपको अभी ये क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, आपको अभी प्रोग्राम क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, तो हमने प्रोग्राम स्टार्ट हैश इंक्लूड stdio डॉट एच वॉइड मेन करली ब्रैकेट से स्टार्ट, ये तो आपको पता है। देन कैरेक्टर नेम, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में 20 मतलब कैरेक्टर नेम की लेंथ क्या होनी चाहिए 20। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। देन इंटीजर m1 m2 m3 एंड टोटल। इंटीजर में हमने क्या लिया, m1 मतलब मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3, हमें 3 सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट करने इसलिए। एंड देन टोटल। देन फ्लोट में क्या लिया, परसेंटेज। अब तक जो प्रोग्राम हमने रन किए उसमें आपने या तो कैरेक्टर देखा है, या तो इंटीजर देखा है, या तो फ्लोट देखा है। तीनों में से आपने एक ही देखा है। हमें यहाँ पे तीनों यूज करने, क्योंकि हमें स्टूडेंट का नेम भी एक्सेप्ट करना है, मार्क्स भी कैलकुलेट करने, उसके परसेंटेज भी निकालने और ग्रेड भी देना है। इसलिए हमें यहाँ पे तीनों यूज करने, कैरेक्टर नेम मतलब कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट। देन प्रिंट एफ में क्या डाला, एंटर स्टूडेंट नेम, स्कैन एफ। देन प्रिंट एफ में एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, देन अगेन स्कैन एफ। देन टोटल। टोटल कैसे निकालेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 मतलब मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3। देन परसेंटेज, टोटल डिवाइड बाय 3। अभी आप बोलोगे परसेंटेज का फॉर्मूला तो ऐसा नहीं, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल मार्क्स अपॉन आउट ऑफ मार्क्स इनटू 100। मैं आपको अभी पीपीटी पे एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट वेट फॉर मिनट। यहाँ पे हम ब्लैंक पेज वाइट। ओके, मैं आप अभी बोलोगे परसेंटेज कैसे निकालने, सपोज 10 20 30, इसका हमें परसेंटेज निकालना है, ये मार्क्स है आउट ऑफ 40। 40 में से 3 स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट को मिले 10, एक स्टूडेंट को मिले 20, देन एक स्टूडेंट को मिले 30। तो हम क्या करेंगे, इनकी टोटल लेंगे प्लस प्लस इनकी टोटल, और आउट ऑफ कितने 40, तो डिवाइड बाय 40 करेंगे और इंटू 100 करेंगे। ओके, या फिर यहाँ पे आप ऐसा कर लो, जस्ट फॉर वेट फॉर मिनट। अभी हमें परसेंटेज निकालना है, तो मार्क्स कितने होने चाहिए, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हम आउट ऑफ 300 करते हैं। ओके, एक को मिले 65, दूसरे को मिले 35 और एक को मिले 75। ओके, आउट ऑफ 300, क्योंकि 100 आउट ऑफ है, परसेंटेज निकालना है तो 300। ओके, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क कितने लिए हमने, आउट ऑफ 300 और इंटू 100। मैं आपको अभी क्या बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्या? आपको अभी यहाँ पे डाउट होगा, विजुअल स्टूडियो कोड, हाँ यहाँ पे डाउट होगा परसेंटेज का फॉर्मूला टोटल डिवाइड बाय 3 क्यों लिया। ओके, तो मैं आपको अभी बताता हूँ फॉर्मूला कैसे एग्जीक्यूट किया गया है। वेयर इज द ब्लैंक स्लाइड। ओके वेट, हाँ तो हमने क्या लिया था, वेट वेट वेट, आई विल टेक ब्लैक स्क्रीन। ओके, हमने लिए थे 65 प्लस 35 प्लस इग्नोर माई हैंड राइटिंग प्लस 75। ओके, देन डिवाइड बाय 300। ओके, बिकॉज आउट ऑफ मार्क्स कितने, 100 प्लस 100 प्लस 100 मतलब एक सब्जेक्ट को 100 आउट ऑफ, दूसरे सब्जेक्ट को भी 100 आउट ऑफ, तीसरे सब्जेक्ट को भी 100 आउट ऑफ, तो टोटल हुए 300। और इनटू, इसको इनटू क्या करते हैं 100 करते हैं। ओके, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो अब मैंने क्या किया, ये जीरो ये जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल कर दिया और यहाँ पे इंटू 1 रह गया। तो हमने क्या किया, टोटल, टोटल यहाँ पे बची ये टोटल। ओके, तो फॉर्मूला कैसे किया, टोटल, टोटल डिवाइड बाय 3, इसलिए मैंने ऐसा फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पे देखो आप क्या बचा, सिर्फ टोटल डिवाइड बाय 3, इंटू 1 किया तो आंसर वही आता है, इसलिए टोटल डिवाइड बाय 3 ऐसा फॉर्मूला हमने लिया है। ओके, देन इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 75 देन रिजल्ट इज डिस्टिंक्शन। इफ
एल्स इफ, यहाँ पे एल्स इफ लिखना है, और यहाँ पे आप याद रखो, यहाँ पे आपको इफ और एल्स की कंडीशन को सेमीकोलन नहीं देना है. देन else if percentage less than 75 and percentage greater than equal to 60, then first class, then another condition is higher second class, then another condition for second class, then another condition for pass class, and else if percentage less than 40, then result is fail. Okay, so let's run the program. Okay, control S for save. अभी मैं मेरी स्लाइड फिर से टर्मिनल को मैं अभी बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियरली सी हो सके. ओके ओके, अभी आपको यहाँ पे टर्मिनल दिख रहा होगा. ओके, ओपन टर्मिनल, गो टू द टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, देन टाइप. ओके, जीसीसी, आपको ये तो पता है जीसीसी फाइल नेम डॉट सी. ओके, जीसीसी मैंने फाइल नेम दिया है स्टूडेंट डॉट सी. ओके, डॉट सी इज कंपल्सरी. ओके, ये प्रोग्राम हमारा रन हुआ. देन फॉर रन द कमांड इज डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी. Okay, enter student name. Suppose I write my name Aditya. Okay, student name is Aditya. Then marks of 3 subjects. Suppose मुझे मिले 65 in physics. Okay, आप ऐसा भी रख सकते हो आपको जो लगे, मतलब जिस सब्जेक्ट के मार्क्स लेने उस सब्जेक्ट के. मैंने लिया 65 in physics, 85 in chemistry and 90 in maths. Okay, then यहाँ पे रिजल्ट आया देखो डिस्टिंक्शन, क्योंकि मेरी इन सब मार्क्स की परसेंटेज 75 से अबो जा रही है. ओके, तो रिजल्ट क्या आया डिस्टिंक्शन, क्योंकि हमने कंडीशन क्या ली है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, अबो 75 हुआ तो डिस्टिंक्शन जाना चाहिए. ओके, दिस इज द प्रोग्राम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डे नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट पर्टिकुलर डे नेम. मतलब हमें डे नंबर देना है. मतलब यहाँ पे एग्जांपल दिया है देखो, 1 को संडे, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, 4 को वेडनेसडे, 5 को थर्सडे, 6 को फ्राइडे और 7 को सैटरडे. ओके, तो हमें प्रिंट पर्टिकुलर डे नेम, मतलब हमने जब नंबर दिया तो वो डे का नेम प्रिंट होके आना चाहिए. ऐसा ये प्रोग्राम है. ओके, आई ऑलरेडी राइट द प्रोग्राम हियर, वेट फॉर मिनट, आई फाइंड इट. ओके, डेज डॉट सी. ओके, यही है क्या? हाँ, यही है. ये देखो प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio डॉट h. देन अभी ये केस का प्रोग्राम है, वर्ड में, देन कर्ली ब्रैकेट, देन हमने क्या लिया इंटीजर डे नंबर, प्रिंट एफ एंटर डे नंबर, देन स्कैन एफ, देन स्विच. अभी स्विच केस यूज की है, देखो स्विच केस में क्या डाला है डे नंबर, देन कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस. केस 1 क्या है, प्रिंट एफ स्लैश एन, अगर हमने 1 दिया तो क्या प्रिंट हो क्या आएगा संडे. देन ब्रेक, ब्रेक आपको हर टाइम ब्रेक आपको एग्जीक्यूट करना ही है तो ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक आपको कमांड देनी है. देन केस 2 पे क्या है मंडे, केस 3 ट्यूसडे, केस 4 वेडनेसडे, केस 5 थर्सडे, केस 6 फ्राइडे, केस 7 सैटरडे. ओके, यहाँ तक हमने किया है. एंड डिफॉल्ट प्रिंट एफ एंटर डे नंबर विद इन 1 to 7, मतलब 7 से ज्यादा नंबर दिए. अगर हमने 8 9 टाइप किया तो क्या आएगा, हमें एक कमेंट एग्जीक्यूट होके आएगी एंटर डे नंबर विद इन 1 to 7, मतलब हमें 1 to 7 में ही नंबर डालना है. ओके, और यहाँ पे आपको हर एक केस के बाद ब्रेक कमांड देनी है. ओके, देन कंट्रोल एस फॉर सेव द प्रोग्राम, देन ओपन टर्मिनल. ओके, ये रहा हमारा टर्मिनल. देन अगेन जीसीसी फाइल नेम डॉट सी, डेज डॉट सी. ओके, एंटर. देन फॉर रनिंग द प्रोग्राम गिव कमांड डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स ई. सॉरी, यहाँ पे गलत हुआ है, मैंने क्या दिया डॉट स्लैश ए स्लैश हो गई. यहाँ पे आप कमांड क्या देनी है, जस्ट वेट फॉर मिनट. अगेन आई विल ओपन न्यू टर्मिनल. ओके, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी, जीसीसी डेज डॉट सी, देन डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी. ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन. ओके, एंटर डे नंबर, अभी हमने देखो 6 डाला, ये देखो 6 नंबर की पे क्या है फ्राइडे. ऐसे आप जो भी नंबर डालोगे वो नंबर एग्जीक्यूट होके आ जाएगा. मतलब उस केस में हमने उस नंबर पे कौन सा डे प्रिंट होने के लिए दिया है, अगर सपोज हमने 1 पे दिया है तो मंडे आ जाएगा, सॉरी संडे आ जाएगा. ओके, या क्योंकि हमने यहाँ पे 1 पे संडे लिया है, आप 1 को मंडे से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो फिर आपका 7 नंबर पे क्या आएगा संडे आएगा लास्ट में. ओके, इस तरह से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड इवन नंबर. तो हमें क्या प्रिंट करना है, फर्स्ट एंड इवन नंबर. मतलब हम जहां तक डालेंगे, अगर हमने डाला 500 तो वहां तक हमें हमारे इवन नंबर प्रिंट होके आ जाएंगे. ओके, यन नंबर तक, मतलब आप इन्फिनिट ले सकते हो.
1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, आपको जो आपकी जैसी विश। ओके, तो लेट्स सी द प्रोग्राम। ओके ओके ओके, फर्स्ट एंड इवन नंबर मैंने ये नाम दिया है। ओके, लेट्स सी दिस प्रोग्राम। इंक्लूड stdio डॉट h void main ब्रैकेट curly bracket integer I and n। ओके, n for n number, printf enter value of n, scanf परसेंटेज, ये तो आपको पता ही है, I is equal to 2 क्योंकि इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। ओके, देन while I is less than equal to n, then printf slash n percent comma I is equal to, अभी कंडीशन के लिए देखो, I is equal to I plus 2। ओके, और I की वैल्यू क्या है, 2 is equal to, यहाँ पे क्या आएगा I, अभी मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट वेट फॉर मिनट। ओके, यहाँ पे देखो, ओके यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, हमने पहले ऊपर I की वैल्यू क्या ली, I की वैल्यू ली 2, देन कंडीशन क्या डाली, I इज इक्वल टू I प्लस 2, क्योंकि इवन नंबर चाहिए तो हम यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, 2 इज इक्वल टू, सपोज वी राइट 7, देन 7 नहीं, इवन नंबर लेना है ना, सॉरी, सपोज वी राइट 6 प्लस 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 8। ओके, सपोज ऐसा, इसलिए हमने क्या कंडीशन डाली, I इज इक्वल टू I प्लस 2। ओके, then we run this program। okay, this is short program। okay, gcc file name dot c first and one dot c। okay, this is my file name, then for running the program dot slash a dot exe। okay, so what is our output, just wait for a minute, it's lagging problem, wait for 1 second only, I will show you। okay, enter value of n, तो n डाला सपोज हमने 500, देन एंटर। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके सामने नंबर देखो, 2 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक इवन नंबर गए, 500 तक। ओके, 500 तक, ऐसा ही प्रोग्राम है, मतलब जहां तक आप नंबर डालोगे वहां तक। मैं आपको और एक डेमो देता हूँ, डॉट स्लैश, मैं इसको और बड़ा करता हूँ ताकि आप क्लियरली सी हो सके। ओके, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स ई, एंटर, एंटर वैल्यू ऑफ एन, सपोज वी इनपुट 3000, ये देखो 3000 तक इवन नंबर आपको प्रिंट होके आपके सामने मिल जाएंगे। ओके, ये देखो सब इवन नंबर है, ये देखो 2104, 2102, 2108 एज लाइक, ये देखो ऊपर तक जाओ आप, स्टार्ट कहां से, 2 से होगी। जस्ट वेट फॉर मिनट, यहाँ पे कुछ तो गलत है, 966 से स्टार्ट, हाउ इट इज पॉसिबल, जस्ट वेट फॉर मिनट, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स। ओके, इंटर वैल्यू ऑफ एम, सपोज वी इनपुट 300, 600। ओके, 600 तक यहाँ पे आपको इवन नंबर मिल जाएंगे, वो ऊपर भी है, वो रन नहीं हो रहा। 2 से देखो कहाँ तक आए, 600 तक, ये देखो 600 तक इवन नंबर। सपोज वी इनपुट डॉट स्लैश, मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ। ओके, डॉट स्लैश ए डॉट, सॉरी जीसीसी, फिर से जीसीसी फर्स्ट एंड इवन, आरएसटी फर्स्ट एंड इवन डॉट सी। ओके, देन डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी। अभी यहाँ पे आ जाएगा इंटर वैल्यू ऑफ इन, वो लैग हो रहा है थोड़ा, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके ओके, वेट, just wait for a minute। okay, enter value of n, suppose we insert 10,000। okay, this is 10,000, then enter। ये देखो आपके सामने 10,000 तक सारे के सारे इवन नंबर रन हो रहे हो। ओके, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो सारे इवन नंबर, मतलब इतना आसान है प्रोग्रामिंग। अगर हम प्रोग्राम डाले ना तो कुछ भी हो सकता है। देखो 10,000 तक सारे के सारे, अगर आपको किसी में क्वेश्चन पूछा मुझे 10,000 तक इवन नंबर चाहिए, तो वो आप लिखने से अच्छा यहाँ से ही डायरेक्टली प्रोग्राम करके कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। ओके,
मतलब इतना सब टाइप करने से अच्छा हमें इवन नंबर तो पता है, ऐसे आप कुछ और भी कर सकते हो, ऑड नंबर भी निकाल सकते हो। ओके, मैं आपको एक अभी होमवर्क देता हूँ, ये देखो, ये सारे 2 से आपको ऊपर तक मिल जाएंगे 10,000 तक। ओके, ये सारे 10,000 तक इवन नंबर है। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ लेक्चर। ओके, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, यहाँ पे जैसा इवन है ना, यहाँ पे आपको ऑड करना है। ओके, ओके, ऑड करना है। तो अभी आप बताओ और में कंडीशन क्या आएगी, और का जो प्रोग्राम है उसमें कंडीशन क्या आएगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ लेना, या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे और के लिए कंडीशन बताना। ओके, और उसका प्रोग्राम आप अपने पीसी पे रन करके देख लेना। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट if statement, if else statement, switch case statement, and while loop, and we take 3 program questions. Okay, so if you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, if you like this video, please like, share and subscribe to our channel, and share this video with your friends of BCS और BCA। अगर जिसको भी सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर चाहिए तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन टाटा, बाय बाय।